will discuss what is ionic bonding. Compounds that contain ions are called ionic compounds. So those compounds that contain ions, they are called ionic compounds. These compounds are formed by reaction between metal and non-metal. So ionic compounds are formed by metal and non-metal. So when metal and non-metal are approached to each other, then form ionic compounds, and ionic compounds contain ions. So why do these substances react together and form bonds? कह रहे हैं कि ये substances, ऐसे substances react करके क्या बनाते हैं? Bonds. और वो क्यों बनाते हैं? The metal and non-metal atoms have incomplete outer electron shells and so are unstable. कह रहा है वो वाले metals and non-metals जिनकी वैलेंस शेल, आउटर शेल क्या इनकम्प्लीट है, मीन्स दे हैव नो कंप्लीट डुप्लेट और ऑक्टेट, दे हैव इनकम्प्लीट आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स, सो दे आर अनस्टेबल. Those metals and non-metals have incomplete outer electron shells, they are unstable. So electrons are transferred from each metal atom to each non-metal atom. Students, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होगा? मेटल से, because metal contain free electrons and metals have low ionization enthalpy and non-metals have high electron gain enthalpy. So that's why electrons are transferred from कहाँ से metal से non-metal से. Electrons are transferred from each metal atom to each non-metal atom. The metal atom and the non-metal atoms form ions. So when metal atom transfer electron, they form cations, and when non-metal atoms gain electrons, they form anions. So they form ions with completely full outer shells and become stable. Student, जितने किसी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट, एंड किसी नॉन मेटल के पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट, उतने इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से इस नॉन मेटल से ट्रांसफर हो जाएंगे ताकि इसका ऑक्टेट और डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाए और नॉन मेटल का भी ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, एंड दोनों क्या बन जाएं? स्टेबल. क्या बन जाएं? स्टेबल टू एक्वायर कंप्लीटली फुल आउटर शेल्स. सो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, मेटल एटम्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस after losing the electrons and non-metal atoms form negative ions after gain the electrons. So these positive and negative ions are strongly attracted to each other. Now they are strongly attracted to each other. For example, this is a cation and this is a anion. So these are strongly attracted with each other. This electrostatic attraction, static means they are not move. These ions are fixed. These ions are fixed. These ions are fixed. So इनमें जो अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन होगी, उस अट्रैक्शन को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. सो व्हेन metal ions and non-metal ions, metal ions lost electrons to form cations, non-metal atoms gain electrons to form anions. After losing the metal, they acquire positive charge, and after gaining the electron, non-metal acquire negative charge, and there is a force of attraction, electrical attraction takes place between the metal atoms and non-metal atoms. Now these form ions, and in these ions there is a strong electrical attraction, and this electrical attraction is called electrostatic attraction. Why electrostatic? Electro means electrical, static means these ions are fixed in their respective positions. After electrical attraction, these ions are fixed in their respective positions. So that's why this attraction is called electrostatic attraction, and this electrostatic attraction is called ionic bonding. So chemistry name is ionic bonding. Ionic bonding, electrovalent bond or polar bond, because these ions acquire polarity, positive polarity and negative polarity.
सो दैट्स वाई दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड, जो इनके बीच में बॉन्ड बना कैटायन और अनायन के बीच में, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड. ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज दीज आयन्स एक्वायर पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव polarity. Now this electrostatic attraction is called ionic bonding, electrovalent bond और polar bond. So compounds containing ionic bond, वो वाले compound जिनमें क्या है ionic bond है, they are called ionic, electrovalent और polar compounds. उनको क्या बोल दिया, ionic, electrovalent और polar compounds. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट, हाउ आर आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म. हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, सिंपल एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की. सो सोडियम क्लोराइड, दिस इज ए सोडियम क्लोराइड NaCl. NaCl is an ionic compound formed by reaction between metal sodium atom and non metal कौन सा, क्लोरीन एटम. ठीक है स्टूडेंट. सो देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन मेटल सोडियम एटम एंड नॉन मेटल क्लोरीन एटम. So sodium has one electron in its outer shell. Its outer shell electronic configuration is 3s1, neon 3s1. So it means to acquire stable noble gas configuration, sodium lose this one electron. So sodium has one electron in its outer shell. इसकी क्या configuration है, 281. ठीक है स्टूडेंट. बाय लॉसिंग दिस इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला लॉस कर देगा तो उसके पास क्या आ जाएगी, फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऑक्टेट उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट. जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम आयन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट. सो इज एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज हो गया. सो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, सोडियम में कौन सा चार्ज आएगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, एंड फॉर्म ए पॉजिटिव आयन. ठीक है स्टूडेंट, एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. नाउ क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल. ठीक है स्टूडेंट, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 287. अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8. तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट. सो बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, कहाँ से आया स्टूडेंट, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था, ये किसने गेन कर लिया है, ये सोडियम ने लूज किया था, माइनस इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इसको गेन कर रहा है. सो बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इट हैज फील्ड आउटर शेल एंड फॉर्म्स ए नेगेटिव आयन. 287 था स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बन गया, 288. और कौन सा आयन आ गया आपका, अनायन, नेगेटिव चार्ज आ गया. कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज. सो by losing one electron, sodium acquires stable noble gas configuration. by gain this electron, जो सोडियम ने लूज किया है वो क्लोरीन ने क्या कर लिया, गेन कर लिया. एंड आल्सो अगेन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो सोडियम बिकम्स कैटायन एंड क्लोरीन बिकम्स एनायन. ठीक है स्टूडेंट. नाउ बोथ सोडियम कैटायन एंड क्लोरीन एनायन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. Now they are stable. कौन stable स्टूडेंट, सोडियम कैटायन एंड क्लोरीन एनायन. ठीक है स्टूडेंट, इसको क्लोराइड आयन भी बोलते हैं. The positive sodium ions and negative chloride ions are strongly attracted to each other. अब स्टूडेंट इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, बिकॉज ऑपोजिटली चार्ज इनके ऊपर आ चुका है. नाउ दीज आर अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड विद ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ दिस sodium ion cation and this chloride ion anion, they are strongly attracted with each other to form a ionic compound. कौन सा, सोडियम क्लोराइड. ठीक है स्टूडेंट, ये सोडियम क्लोराइड बन गया एंड दिस इज ए आयनिक कंपाउंड. दिस इज ए आयनिक कंपाउंड. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. सोडियम बिकम्स कैटायन एंड क्लोरीन बिकम्स एनायन. नाउ दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड विद ईच अदर. देखिए स्टूडेंट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है. सो 1s2, ये आपका 2 4 6 8 288 आ गया स्टूडेंट, ऑक्टेट पूरा हो गया. अब क्लोरीन का देखिए 2, या नेक्स्ट शेल 2 4 6 8, ये भी कंप्लीट हो गया 28. अब थर्ड शेल 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया. ये जो इलेक्ट्रॉन स्टार वाला इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ये कहाँ से आया, ये सोडियम से आया. ये कहाँ से आया है, सोडियम से. ठीक है स्टूडेंट, दी सर्कल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर electrons of chlorine and these starred electrons are electron
ऑफ सोडियम. सो ये स्टार इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? सोडियम से, जो सोडियम ने लूज किया और क्लोरीन ने गेन कर लिया टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड टू फॉर्म पॉजिटिव एंड negative ions. Now they are strongly attracted with each other by electrostatic force of attraction. So it is this electrostatic attraction that form ionic bonds in sodium chloride and also in other ionic compounds. ठीक है student? So now see the animation. कह रहा है when a metal such as sodium reacts with a non-metal such as chlorine, an ionic compound forms. ठीक है student? So sodium metal atom. So metal atoms such as sodium have a small number of electrons in the highest energy level. So metals के पास क्या होता है? Small number of electrons in the higher energy level. कौन सी यहाँ पे? Third energy level 3s1. They lost these electrons. They lost these electrons to achieve a stable electronic configuration. This results in the formation of क्या बन गया student? Positive ions. सोडियम के पास क्या था? 11 protons and 11 electrons. So after lose one electron, sodium ion means sodium cation have 10 electrons and charge कितना आ गया? +1. Again see the animation. So after losing the electron, sodium becomes sodium cation. charge कितना आ गया? +1. ठीक है स्टूडेंट? So non-metal atoms such as chlorine have a large number of electrons in the highest energy level. यहाँ पे कौन सी एनर्जी लेवल है? थर्ड एनर्जी लेवल है. ठीक है स्टूडेंट? सो 3p5 था, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर एनर्जी लेवल. नॉन मेटल्स में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी लेवल. एंड मेटल्स में क्या होता है? लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी लेवल. नाउ क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल configuration by filling this energy level. So 3p5 था स्टूडेंट. So 3p5 एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया. क्या हो गया? 3p6. So 3s2 3p6 ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट. और चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज. तो क्या बन गया? नेगेटिव आयन. सो सोडियम का बन गया था आपका सोडियम कैटायन एंड क्लोरीन अनायन का बन गया आपका क्लोराइड आयन. ठीक है स्टूडेंट? एक बार फिर से देख लीजिए. ये सोडियम कैटायन था. अब क्लोरीन, पहले क्लोरीन एटम था न्यूट्रल, 17 proton 17 electron, charge 0. Now 1 electron gain by chlorine atom from sodium ion. चार्ज कितना आ गया? -1. ठीक है स्टूडेंट? अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 17 रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके? 18. सो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चार्ज माइनस आ गया. सो इन रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन द इलेक्ट्रॉन इन द हायर एनर्जी लेवल ऑफ सोडियम मीन्स 3s से. हायर एनर्जी लेवल कौन सी है? 3s से. ट्रांसफर्स एंड फिल द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन की हाई एनर्जी लेवल को क्या कर दिया? फिल कर दिया. हाई एनर्जी लेवल मीन 3p. 3s सोडियम की थी, 3s1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहां पे चला गया? 3p ऑफ क्लोरीन. सो अब दोनों में क्या आ गया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ठीक है स्टूडेंट? फिर से देख लीजिए आप. सो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, सोडियम कैटायन बन गया. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन बन गया. ठीक है स्टूडेंट? सो बोथ एक्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस and they form ions, and these ions are of opposite polarity. So the ions are held together by electrostatic attraction between the opposite charges. This attraction between oppositely charged ions is called a ionic bond. अब इनमें क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो गई है और क्या बन गए हैं ये आपके आयनिक कंपाउंड्स. एंड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज आयनिक बॉन्ड. सो नेक्स्ट कह रहा है कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. द एटम विच चेंजेस इनटू कैटायन. कह रहा है वो वाला एटम जिसने क्या बनना है? कैटायन. शुड पोजेस 1, 2 और 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. मैंने अभी कहा हाईएस्ट एनर्जी लेवल मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वो क्या होने चाहिए? स्मॉल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्या होने चाहिए? स्मॉल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 और 3. ठीक है स्टूडेंट? और ये इसकी वैलेंसी भी है. The other atom which changes into anion, जिसने क्या बनना है? नेगेटिव आयन बनना है. should possess 5, 6 और 7 electrons in the valency shell means outer shell. जो स्टूडेंट आपका कैटायन है उनकी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? कम. और जिसने अनायन बनना है उनकी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? मोर. 5, 6 और 7. ठीक है स्टूडेंट?
एंड दिस इज कॉल्ड ए वैलेंसी। अब ये वैलेंसी वाला टॉपिक था पीरियोडिक टेबल का, लेकिन मैं केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पे कैटायन की वैलेंसी क्या आ गई 1, 2 और 3, और यहाँ पे अनायन की वैलेंसी क्या आ गई। अब अनायन की वैलेंसी हमने कैसे निकालनी है, 8 माइनस करके, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। और मेटल्स की जो वैलेंसी है वो यही रहेगी 1, 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मैं वैलेंसी वाला टॉपिक यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मेटल्स में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई लार्ज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल वो क्या होते हैं, स्मॉल। अब जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स में, वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है, तो ये इनकी क्या है, वैलेंसी। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 वाले एटम्स की वैलेंसी 2 है, ग्रुप 3 वाले एटम्स की वैलेंसी 3 है। सो मेटल्स की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब नॉन मेटल की बात आ गई। नॉन मेटल में क्या करें कि हायर एनर्जी लेवल मींस वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, मोर 5, 6 और 7। और नॉन मेटल्स की कंडीशन क्या है वैलेंसी देखने की, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 8 माइनस 5 3 वैलेंसी आ गई स्टूडेंट आपकी नॉन मेटल की। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 माइनस 6 2 आ गई वैलेंसी। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 आ गई वैलेंसी। ठीक है स्टूडेंट, मेटल्स की वैलेंसी भी आपको देखनी आ गई है और नॉन मेटल की वैलेंसी भी आपको देखनी आ गई है। मेटल की होगी पॉजिटिव वैलेंसी और नॉन मेटल्स की होगी नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और नॉन मेटल्स ने गेन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, वैलेंसी वाला टॉपिक मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया है जो था पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ए हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अबाउट 2 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। ये हम स्टूडेंट अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्या है हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप अभी याद कर लो कितना मैग्नीट्यूड है, 2 ऑफ 2 एटम्स इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कह रहा है ए और बी में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा। क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा, तभी आपका क्या बनेगा, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मींस ए और बी में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। जिसने कैटायन बनना है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम, ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। अब जिसने अनायन बनना है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, गेन करेगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2 से ज़्यादा आ गया तो ये जो बॉन्ड बनेगा आपका, ये कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, कैटायंस का साइज लार्ज होता है, सो दैट्स वाई जिन्होंने कैटायन बनना होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम। अब जिन्होंने अनायन बनना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकें और ये गेन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में एक्स बी माइनस एक्स ए, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तभी जो ये आपका बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिटवीन सिमिलर एटम्स। अब स्टूडेंट ये भी आपने याद रखना है, सिमिलर एटम्स में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, सेम, एक्स ए डिफरेंस कितना आ गया, एक्स ए माइनस एक्स ए क्या आ गया, 0। सो दैट्स वाई ionic bond is not possible between similar atoms. It is always possible in dissimilar atoms with condition क्या आ गई, electronegativity difference between 2 atoms is more than 2. ठीक है स्टूडेंट, now small decrease in energy, there must be overall decrease in energy, that is energy must be released. ये स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ, जब bonds बनते हैं तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज। एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज, क्योंकि जितनी एनर्जी कम रह जाएगी, कम तभी रह जाएगी अगर ज़्यादा रिलीज होगी तो। अब जितनी एनर्जी कम रह जाएगी, मैंने आपको एक केमिस्ट्री का बेसिक रूल समझा रखा है, एनर्जी लेस और स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर ज़्यादा एनर्जी ए और बी से रिलीज हो जाएगी तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ए और बी के पास क्या रह जाएगी, कम। अगर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ए और बी के पास कम रह जाएगी तो मींस उनका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्टेबल। क्योंकि अगर ए और बी दोनों के पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो स्टूडेंट ये कभी भी पास नहीं आएंगे और आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। सो मोर द एनर्जी रिलीज्ड
lesser the amount of energy remains behind and more the stability. So there must be overall decrease in energy, that is energy must be released. For this an atom should have low value of ionization potential and other atom should have high value of electron affinity. अब जिसने स्टूडेंट कैटायन बनना है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम, क्या होनी चाहिए कम, ताकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। अब जिसने अनायन बनना है, जिसने अनायन बनना है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, तो ताकि इसकी गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो, ज़्यादा, तो तभी ये क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। और बॉन्ड कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड। So there must be overall decrease in energy, that is energy must be released. For this an atom should have low value of ionization potential, means gain कम हो, and other atom should have high value of electron affinity. Electron affinity means release of energy, release क्या हो, ज़्यादा, तभी तो ये bond क्या बनेगा आपका, stable बनेगा। So cation should have low value of ionization potential and anion should have high value of electron affinity और electron gain enthalpy being more negative। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कंडीशन लैटिस एनर्जी। अब स्टूडेंट जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या बनाते हैं, लैटिस, और लैटिस हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ए और बी है, ये आपके ए बी है और ये आपका बी ए है। ऐसे स्टूडेंट ये आपके आयनिक कंपाउंड्स आपस में क्या होते रहते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं। और एक बहुत बड़ा इनमें भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, कितने सारे आयनिक कंपाउंड जब आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, बहुत बड़ा लैटिस। ये मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं। सो लैटिस कहता हायर द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मीन्स जब ये लैटिस बनेगा तो इसमें से एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, रिलीज होगी। क्या होगी, रिलीज होगी। लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। सो कह रहा है जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उतनी कम एनर्जी क्या रह जाएगी, उतनी कम एनर्जी रह जाएगी तो उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। सो हायर द लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी मीन्स उतनी कम एनर्जी रह जाएगी, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतने जो आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, और उतनी जल्दी आयनिक कंपाउंड बनने की टेंडेंसी होगी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री आयंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए 1 मोल ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। क्या है लैटिस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कब, जब फ्री आयंस आपस में क्या करेंगे, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल ये आपका सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुगेदर। अब क्या बना आपका, ये सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, क्रिस्टल बन गया। और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट। एंड मोर द लैटिस एनर्जी more the tendency to form ionic bond and stronger will be the bond. So magnitude of lattice energy carried directly proportional to charge of ion. जितना चार्ज ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल सोडियम के पास क्या है स्टूडेंट, चार्ज +1, और मैग्नीशियम के पास कितना है, +2, एल्यूमिनियम के पास कितना है, +3। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। अब जितना स्टूडेंट साइज कम होगा, आपके मेटल्स नॉन मेटल का साइज जितना कम होगा, ठीक है स्टूडेंट, चार्ज किसका ज़्यादा होगा, कैटायंस का। अब एनायंस की बारी आ गई। एनायंस का जितना साइज कम होगा, जैसे आपका फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ब्रोमीन आ गया। अब क्लोरीन और ब्रोमीन की फॉर एग्जांपल बात करें, फ्लोरीन स्टूडेंट आपका एक्सेप्शनल केस है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्लोरीन का साइज ब्रोमीन के साइज से क्या कम, इसका मतलब जो लैटिस एनर्जी बनेगी वो क्लोराइड वाले आयंस में क्या बनेगी, ज़्यादा, और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। सो मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। मोर द चार्ज ऑफ आयन मोर द लैटिस एनर्जी, एंड स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर द लैटिस एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट। एंड दिस इज द कैटायन, दिस इज द एनायन, और ये क्या बन गया आपका एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड, और साथ में क्या आ गई है यू, लैटिस एनर्जी रिलीज्ड। लैटिस एनर्जी रिलीज्ड, मोर द लैटिस एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड।
सो नेक्स्ट व्हाट इज आयनिक लैटिस। हम अभी लैटिस एनर्जी की बात कर रहे थे, अब देखिए आयनिक लैटिस क्या है। कह रहा है इन एन आयनिक कंपाउंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आयंस आर पैक्ड टुगेदर। स्टूडेंट मैंने पहले ही बोला था अभी, एक आयंस नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आयंस आर पैक्ड टुगेदर इन ए रेगुलर क्यूबिक अरेंजमेंट, किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। ये नहीं कि ऐसे ही आपके रैंडमली वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं? इन ए रेगुलर क्यूबिक अरेंजमेंट ज्वाइंट बाय कौन से बॉन्ड्स के साथ? आयनिक बॉन्ड्स के साथ। और जो मिलियन एंड मिलियंस ऑफ आयन जो पैकिंग है इन आयंस की, उनको क्या बोल दिया हमने? आयनिक लैटिस। क्या बोल दिया? आयनिक लैटिस। आयनिक लैटिस क्या है? आयनिक कंपाउंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आयंस आर पैक्ड टुगेदर इन ए रेगुलर क्यूबिक अरेंजमेंट ज्वाइंट। कैसे ज्वाइंट? बाय आयनिक बॉन्ड्स। तो क्या बनेगा? आयनिक लैटिस। ये देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है? ये आपके ऑपोजिटली चार्ज आयंस आपस में क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल आपका एक सोडियम क्लोराइड था और ये दूसरा आ गया। ध्यान से देखिए ये कितने सारे कंपाउंड है, एंड दीज आर ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट टुगेदर। ये देखिए ये फॉर एग्जांपल एक आपका कैटायन है और ये अनायन है। ये आपका एक कंपाउंड आ गया आयनिक कंपाउंड। अब ये आपका एनायन है और ये क्या आपका कैटायन, ये सेकंड आ गया आयनिक कंपाउंड। ये आपका फर्स्ट आयनिक कंपाउंड आ गया, ये आपका सेकंड आयनिक कंपाउंड आ गया, ये आपका थर्ड आयनिक कंपाउंड आ गया, फोर्थ आयनिक कंपाउंड आ गया, एंड सो ऑन। इसके पीछे भी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे ही आपके आयनिक कंपाउंड्स क्या हो जा रहे हैं? इन 3D पैटर्न में ज्वाइंट हुए जा रहे हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका एक आयनिक कंपाउंड आ गया, ये दूसरा आयनिक कंपाउंड आ गया, ये तीसरा आयनिक कंपाउंड आ गया, ये फोर्थ आयनिक कंपाउंड आ गया। ऑपोजिटली चार्ज आयंस आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट? अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कौन सा स्ट्रक्चर बन गया आपका? 3D स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया है? 3D स्ट्रक्चर। और इस 3D स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? आयनिक लैटिस। फिर से देख लीजिए आप, ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है? ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर पैक्ड टुगेदर इन ए रेगुलर क्यूबिक अरेंजमेंट। ये आपका क्यूब बन गया स्टूडेंट, ठीक है। ये आपकी जो शेप आई है, कौन सी शेप आ रही है? क्यूबिक शेप आ रही है। कौन सी आ रही है? क्यूबिक शेप, 3D शेप, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी इसमें क्या हो रहे हैं? ऐसी शेप में आयंस क्या हो रहे हैं? दे आर पैक्ड टुगेदर, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे आपके आयंस क्या हुए जा रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। ऐसे क्या हो रहे हैं? ये क्यूबिक अरेंजमेंट में पैक हो रहे हैं आयंस। और इस कंप्लीट पैक को क्या बोल दिया हमने? आयनिक लैटिस। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आयंस आर पैक्ड टुगेदर, ठीक है स्टूडेंट। एंड आयनिक लैटिस विल कंटिन्यू टू बिल्ड इन दिस वे। ऐसे ही आयनिक लैटिस क्या होता रहेगा? बिल्ड होता रहेगा अंटिल देयर आर नो मोर आयंस लेफ्ट टू ऐड। जब तक ये पूरी तरह से पैक नहीं हो जाता, ये नंबर ऑफ आयंस ऐड होते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जब तक ये पूरी तरह से पैक नहीं हो जाता, देन नो मोर आयंस लेफ्ट टू ऐड, तब तक ये पैक होते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इन द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक लैटिस अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसी आयनिक जो आयनिक लैटिस का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही आपके आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉलिड वाले चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट। अभी आप ये देख लीजिए कि एक आयनिक लैटिस बन रहा है। कैसे बन रहा है? व्हेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आयंस आर पैक्ड टुगेदर इन ए रेगुलर क्यूबिक अरेंजमेंट। ज्वाइंट कैसे हैं? ये ज्वाइंट, ये आपका जो एक कंपाउंड है कैसे ज्वाइंट है? आयनिक कंपाउंड के साथ, आयनिक बॉन्ड के साथ। ये भी क्या है? आयनिक बॉन्ड के साथ। ये भी क्या है? आयनिक बॉन्ड। और इनमें आपस में भी क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या बन रहा है? आपका लैटिस। अब हम फिर से देखेंगे सोडियम क्लोराइड का लैटिस, ठीक है स्टूडेंट। सो कह रहा है हाउ डू सोडियम एंड क्लोरीन बॉन्ड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम मैंने क्या कहा था? मेटल्स का साइज क्या होता है? लार्ज, एंड नॉन मेटल्स का साइज क्या होता है? स्मॉल। सबसे पहले आप ये देखिए, और मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, और नॉन मेटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में क्या होते हैं? ज़्यादा। मेटल का साइज लार्ज बिकॉज दे हैव लो वैल्यू फाइनेंस एंथैल्पी, नॉन मेटल्स का साइज स्मॉल बिकॉज दे हैव more negative electron gain. Enthalpy means more tendency to attract the electron. So metals have more tendency to lose the electron, and non-metals have more tendency to gain the electrons. Now these electrons are revolving around the nucleus. Now valence shell, last electron देखिए स्टूडेंट सोडियम में 281,
ठीक है सर। टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड टू एलिमेंट्स मस्ट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या क्या करेंगे, सोडियम एंड क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे टू कंप्लीट देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स। मीन्स अपनी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एंड ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट आपका, वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, दिस क्रिएट्स ए पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। दोनों के ऑक्टेट क्या हो गए स्टूडेंट, कंप्लीट हो गए हैं। अब एक क्या बन गया, कैटायन, दूसरा क्या बन गया, अनायन। नाउ दीज कैटायंस आर अनायंस आर अट्रैक्टेड विद स्ट्रांगली with electrostatic force of attraction. These ions attract each other. An electrostatic force is created between the two ions and this is called a ionic bond. अब स्टूडेंट ये क्या बनेगा आपका, लैटिस। सो मिलियंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड ज्वाइन टुगेदर बाय आयनिक बॉन्डिंग टू फॉर्म ए 3D लैटिस। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब मिलियंस ऑफ आयंस, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ये क्या हो रहे हैं, ज्वाइन in a 3D pattern, they pack together to form a lattice, ionic lattice। फिर से देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, and they form ionic lattice of sodium chloride। अब स्टूडेंट देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाउ डू मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बॉन्ड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले स्टूडेंट आपको मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2। सो हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 2s2 2p6। ठीक है स्टूडेंट। एंड ऑक्साइड, ऑक्सीजन की क्या है, 1s2 2s2 2p4, तो उसने क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। सो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि 2s2 2p6 आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, और ऑक्सीजन 2p4 है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा ताकि उसकी 1s2 2s2 2p6, तो 2s2 2p6 ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। सो मैग्नीशियम लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मेटल्स का साइज लार्ज, नॉन मेटल्स का साइज क्या है, स्मॉल। ठीक है स्टूडेंट। सो क्या है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 एलिमेंट्स मस्ट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स। ठीक है स्टूडेंट। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन, दिस क्रिएट्स ए पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम आयन, कितना आ गया 2+, एंड नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयन कितना आ गया 2 नेगेटिव। और दोनों के ऑक्टेट क्या हो गए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कंप्लीट हो गए हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैग्नीशियम टू oxygen, magnesium acquire 2 positive charge and oxygen acquire 2 negative charge. Now these oppositely charged ions are strongly attracted with ionic bond। ठीक है students, so they are strongly attracted with strong electrostatic force of attraction and this is called a ionic bond। अब student lattice बनेगा आपका। Now these magnesium oxide ions, millions of positive magnesium ions and negative oxide ions join together by ionic bonding to form a 3D lattice। फिर से देख लीजिए, so these millions of ions pack together to form a 3D lattice। ठीक है स्टूडेंट। नाउ कह रहा है हाउ रिप्रेजेंटिंग आयनिक कंपाउंड्स। ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी बता दिया है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड, लेयर्स बन गई हैं। ईच पॉजिटिव सोडियम आयन इज इक्वली अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव क्लोराइड आयंस दैट सराउंडेड। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये देखिए, सोडियम एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिव आयंस वेयर क्लोरीन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम नेगेटिव आयंस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता चल गया है। अब नेक्स्ट देखिए, ई सोडियम आयन इज इक्वली अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव क्लोराइड आयंस दैट सराउंड इट। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, देयर आर 6 क्लोराइड आयंस इन टोटल
एक सोडियम आयन है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कोई भी एक सेंटर में आप सोडियम आयन देख लीजिए, आप कोई भी एक सेंटर में सोडियम आयन देख लिया स्टूडेंट। अब देखिए सोडियम आयन के सराउंडिंग आपको कितने क्लोराइड आयन्स नजर आ रहे हैं, 4। ग्रीन कलर वाले आपके क्लोराइड आयन्स है। कोई भी आप सोडियम आयन्स देख लीजिए सेंटर में और देखिए सराउंडिंग में आपको कितने क्लोराइड आयन्स नजर आ रहे हैं, उसके साथ अट्रैक्ट होते हुए किसी एक सोडियम आयन के साथ कितने आपको नजर आ रहे हैं, 4। सो ईच सोडियम आयन इज, जो आपको नजर आ रहा है कितने नजर आ रहे हैं, वो 4 क्लोराइड आयन्स। अब लेकिन टोटल है स्टूडेंट 6, 2 आपके फ्रंट में है, सॉरी एक आपके फ्रंट में है और एक इस सोडियम आयन के बैक में है। सो टोटल 6 क्लोराइड आयन्स हैं एक सोडियम आयन के साथ। ध्यान से देखिए, एक सोडियम आयन आप देख लीजिए, उसके सराउंडिंग देखिए आपको 4 क्लोराइड आयन्स नजर आ रहे होंगे, नजर आ गए स्टूडेंट आपको। अब एक क्लोराइड आयन सोडियम आयन के फ्रंट पे है और एक क्लोराइड आयन सोडियम आयन की बैक पे है, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सो ईच सोडियम आयन इज इक्वली अट्रैक्टेड टू द हाउ मेनी क्लोराइड आयन्स, 6 क्लोराइड आयन्स, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 1 इन फ्रंट एंड 1 इन बिहाइंड, ठीक है स्टूडेंट। वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए, ठीक है स्टूडेंट। सो ई सोडियम आयन इज इक्वली अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव क्लोराइड आयन दैट सराउंडेड इट। सो देयर आर 6 क्लोराइड आयन्स इन टोटल, 4 शोन इन द डायग्राम, 4 आपको नजर आ रहे हैं एक सोडियम आयन के साथ, 4 क्लोराइड आयन्स, प्लस 1 इन फ्रंट एंड 1 इन बिहाइंड, ठीक है स्टूडेंट। एंड ध्यान से फिर से देखिए, ईच क्लोराइड आयन, अब क्लोराइड आयन को देखिए स्टूडेंट, ईच क्लोराइड आयन इज इन टर्न अट्रैक्टेड टू 6 पॉजिटिव सोडियम आयन्स। अब आपने ग्रीन कलर का क्लोराइड आयन देखना है। अब स्टूडेंट ईच क्लोराइड आयन के सराउंडिंग सोडियम आयन्स कितने हैं, कोई आप सेंटर में क्लोराइड आयन देख लीजिए, कितने आपको सोडियम आयन्स नजर आ रहे हैं, 4 सोडियम आयन्स। अब इसमें भी 6 हैं, एक सोडियम आयन क्लोराइड आयन के फ्रंट पे है और दूसरा क्या है, बैक पे है। अब ऐसे ही ये लेयर्स ग्रो होती जा रही हैं स्टूडेंट, ऐसे ही ये लेयर्स आपकी ग्रो होती जा रही हैं। सो द अट्रैक्शन बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ आयन्स एक्सटेंड इन 3 डायमेंशंस क्रिएटिंग ए 3D स्ट्रक्चर कॉल्ड ए आयनिक लैटिस। अब एक सोडियम आयन के अराउंड कितने क्लोराइड आयन्स हैं, 6, और एक क्लोराइड आयन के अबाउट कितने सोडियम आयन्स हैं, 6। 6:6 रेशो कितनी आ गई, 1:1। So in ionic solids, the bonds are not found in isolation but exist as a part of ionic lattice. So there is no such thing as molecule of NaCl. The structure can be represented by its, ये students जो NaCl आप देख रहे हो सिर्फ वो क्या है, फार्मूला यूनिट है, क्या है, फार्मूला यूनिट। Each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions, ठीक है स्टूडेंट। ये आप देख लीजिए, मैंने आपको अभी ये दिखाया, ये सोडियम आयन था स्टूडेंट फॉर एग्जांपल। अब इसके सराउंड क्या थे, 4 क्लोराइड आयन्स जो आपको नजर आ रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। अब 4 तो आपको नजर आ रहे हैं, एक स्टूडेंट क्लोराइड आयन, ये जो डॉटेड में बना रहा हूँ ये क्या है, क्लोराइड आयन, एक फ्रंट पे है और दूसरा कहाँ पे है, बैक पे है। सो ईच सोडियम आयन इज साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड विद 6 क्लोराइड आयन्स। और ऐसे स्टूडेंट ईच क्लोराइड आयन इज साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड विद 6 सोडियम आयन्स। 4 आपको सामने नजर आ रहे हैं, 4 आपको नजर आ रहे हैं और एक क्लोराइड आयन इसके फ्रंट पे है और दूसरा बैक पे है, बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज 3D यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। सो रेशियो कितनी आ गई सोडियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स की इस पूरे लैटिस में, 1:1, ठीक है स्टूडेंट। सो वही निकाल रहे हैं हम, कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयन्स, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे पता चल गया आपको लैटिस बन रहा है। नाउ व्हाट इज रेशियो ऑफ आयन्स, कह रहा है सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। तो ये क्या थे, सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। इन ईच कंपाउंड द मेटल नीड्स टू लॉस द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द नॉन मेटल नीड्स टू गेन। अब मेटल्स ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, जितने वो लूज करेगा उतने नॉन मेटल दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ने लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने गेन कर लिया, सोडियम क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए
और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, 2 एक्वायर इट्स ऑक्टेट, मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयन बन गया, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड सेटअप हो गए। बोथ कंपाउंड्स दैट 1:1 रेशियो ऑफ मेटल आयंस टू नॉन मेटल आयंस विच इज शोन बाय फार्मूला ऑफ ईच कंपाउंड। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो सोडियम एंड क्लोराइड की रेशो क्या है, आयंस की 1:1, मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयंस भी की रेशो भी क्या है 1:1। कह रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयंस इन सोडियम ऑक्साइड। अब क्या है, कह रहा सोडियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2:1, इसने कितने लूज करने हैं 1 टू फॉर्म सोडियम आयन, बट ऑक्सीजन की क्या है 2,6, इसने कितने गेन करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बन जाएगा ऑक्साइड आयन। अब सुन सोडियम ने 1 लूज करना है, ऑक्सीजन ने 2 गेन करने हैं, तो ये रेशो तो हो नहीं रही ना, इसका मतलब कितने सोडियम एटम्स आएंगे 2, सो 2 सोडियम एटम्स आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ई सोडियम एटम, क्योंकि ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और सोडियम ने कितने लूज करने हैं 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो दैट्स व्हाई अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2:1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2:1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,6। अब 1 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहाँ से आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ये भी गया और ये भी गया, इन दोनों सोडियम आयंस की क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2,8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसकी भी कितनी आ गई 2,8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसकी भी क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2,8, सबके ऑक्टेट क्या हो गए हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या आया 2 सोडियम आयंस अट्रैक्टेड विद 1 ऑक्साइड आयन, ठीक है स्टूडेंट। So 2 sodium atoms are required for each oxygen atom and so the ratio of sodium ions to oxide ion, अब रेशो कितनी आ गई स्टूडेंट 2:1, 2 सोडियम आयंस हैं और 1 ऑक्साइड आयन है, सो फार्मूला क्या बन गया आपका Na2O। सो सोडियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला आ गया Na2O, पता लग गया स्टूडेंट। और रेशो कितनी आ गई सोडियम आयंस एंड ऑक्साइड आयंस की 2:1, ठीक है स्टूडेंट। रेशो समझ आ रही है आपको, ये कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं। What is the ratio of ions in magnesium chloride? अब स्टूडेंट मैग्नीशियम के पास क्या है 2:2, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज़्यादा, सो नीड्स लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मैग्नीशियम आयन, बट क्लोरीन की क्या है 2:7, इसको तो एक ही चाहिए टू फॉर्म एन क्लोराइड आयन। अब मैग्नीशियम ने 2 लूज करने हैं, क्लोरीन को एक ही चाहिए, अब क्या होगा 1 मैग्नीशियम, क्योंकि इसकी कितनी कॉन्फ़िगरेशन है 2:2, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं ये वाले लूज करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, क्या कंप्लीट हो गया ऑक्टेट 2:8 कंप्लीट हो गया। क्लोरीन की क्या है 2:7, इसकी भी कितनी है 2:7, अब इसकी कितनी थी सोडियम की 2:2, अब इसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मैग्नीशियम आयन की कितनी आ गई 2:8 और क्लोराइड आयन की कितनी आ गई 2:8, इस क्लोराइड आयन की भी कितनी आ गई 2:8, सबका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। अब क्या फार्मूला बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, अब रेशो क्या आ गई 1:2, ठीक है स्टूडेंट। सो 2 क्लोरीन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच मैग्नीशियम एटम, क्योंकि एक मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने थे और 1 क्लोरीन ने गेन करने थे। सो द रेशो ऑफ मैग्नीशियम आयंस टू क्लोराइड आयंस क्या रेशो आ गई 1:2 और फॉर्मूला क्या बना आपका MgCl2, ठीक है स्टूडेंट। रेशो पता चल रही है आपको। सो कह रहा है हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। स्टूडेंट ये रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आप अच्छी तरह से देख लीजिए, मैंने आपको सिंपल आयनिक कंपाउंड्स बनाने सिखा दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स।